شک ہے غازی کے ہیرو کے بارے میں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں گورنر ہاؤس کے تقدس کو بحال کرنے کی خاطر یہاں یہ اعلان کر رہا ہوں، جو غازی ممتاز کو ہیرو نہ مانے، رب کی قسم وہ زیرو ہے۔ اگر قانونی طور پر، علمی طور پر کسی نے اس مسئلے کو چیلنج کیا ہے تو میں چیلنج قبول کر رہا ہوں۔ لاش کو لوبڑی کو ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہم مچھروں کے ہوش بھی ٹھکانے لگائیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے۔ سلام ہو غازی ممتاز تجھے، تو نے گستاخانہ سوچ کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ کوئی بھی غازی کے خلاف زبان نہ کھولے، ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اور قوم کو دھوکہ دینے والا نام نہاد روشن خیال سکالر پاکستان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ ہم میڈیا سے گزارش کریں گے کہ جب بھی تم انہیں لائیو لیتے ہو، اس کے مقابلے میں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کو لائیو لیا کرو، جو اسلام کی صحیح نمائندگی کریں گے۔ اور ہم میں گزارش کروں گا، آج کے بعد تحفظ ناموس رسالت محاذ کی علمی جنگ اور علمی محاذ پر جو ہمارا مقدمہ لڑے گا، اس وکیل کا نام کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی ہے۔ ہم میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ کنز العلماء سفیر عشق رسول حضرت ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت محاذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعذروه وتوقروه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری کے شہر لاہور میں غازی علم الدین شہید کے مزار کے زیر سایہ پاکستان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے سواد اعظم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محاذ تحفظ ناموس رسالت محاذ کے زیر اہتمام آج حضرت غازی ممتاز حسین قادری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشان ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس وقت میڈیا اور حکمرانوں کے سامنے ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں، 295 ایمانی اور قرآنی قانون ہے، اگر اس کے بعد کسی نے زبان کھولی اس قانون کے خلاف، ہم اس کی زبان کتی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ قانون ناموس رسالت، قانون ناموس رسالت کے خلاف بولنے والے مچھروں اور چھپکلیوں کو ہم وارننگ دیتے ہیں، جب تک جان میں جان ہے ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسموں کا، اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اٹھا لے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی، سب وار کے پونجی چندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں چلتا رہے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل خلد بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ محبوب کی عزت کر مانگے، ہم سب کی جان بھی حاضر ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو، آقا تیری شان کی خاطر، ہاتھ لڑا کر آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر، آقا تیری شان کی خاطر محبوب کی عزت کر مانگے، محبوب کی عزت کر مانگے، ہم سب کی جان بھی حاضر ہے۔ ایک جان نہیں ان پہ تو لکھ بار بھی سب کے جائیں گے۔
शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इज्तिमा गाजी मुमताज कादरी के किरदार को सलाम पेश करने के लिए निकला है। मैं बबांगे बहन कहता हूं, जब बैन अक़वामी सतह पर गुस्ताखियों का धुआं उड़ रहा था और हर तरफ गुस्ताखाना कल्चर डेवलप हो रहा था, सलाम हो गाजी मुमताज तुझे, तूने गुस्ताखाना सोच की कमर तोड़ के रख दी है। मैं उन दीन फरोश सकालरों को, उन मच्छरों और छुपकलियों को जो टीवी की स्क्रीन पर बैठकर गाजी के खिलाफ या कानून नबी से रिसालत के खिलाफ बकवास करते हैं, हमने बरसरेआम ललकारा है। जो आएगा हमने 9 जनवरी दीवान इकबाल में दलाल का मेला लगाकर साबित कर दिया। और उसके बाद हम ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। मैं कहूंगा नस गामदी जला लिया है, तुझे कहना जला लिया, नस गामदी, नस गामदी, नस गामदी, नस गामदी, नस गामदी। नचना की तो नस गया पहले। हम हक की आजान की खातिर इंशाअल्लाह मीडिया वालों को कहते हैं, अगर तुम्हारा यही बिहेव हमसे रहा तो तुम पे भी हमें अफसोस होगा। जब भी उस बकवास करने वाले को बुलाते हो, लाओ उसको लूबड़ी को हमारे सामने बिठाओ, हम मच्छरों के होश भी ठिकाने लगाएंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जिनको शक है गाजी के हीरो के बारे में, रब्बे काबा की कसम है, मैं गवर्नर हाउस के तकद्दुस को बहाल करने की खातिर यहां ये ऐलान कर रहा हूं कि आज के बाद सोच का कितना सीधा किया जाए। जो गाजी मुमताज को हीरो ना माने, रब की कसम वो जीरो है। हीरो है वो हीरो, जो नहीं मानता हम उसको जीरो करार दे रहे हैं। और मावराए अदालत के लफ्ज बोलने वालों सुनो, सबसे बड़ी अदालत सारे जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो अदालत मदीना शरीफ में लगी हुई थी कि अजीम उमर फारूक ने सरकार से पूछे बगैर गुस्ताख का सर उतारा। सरकार की अदालत ने रब के फैसले में लोहे महफूज ने हजरत उमर के किरदार की हिमायत कर दी। फिर देखो बहरीन में बच्चे हॉकी खेल रहे थे, एक पादरी ने गेंद के मसले पर गुस्ताखी कर दी, तो क्या हुआ, बच्चे ने उसे गेंद बना लिया। अल मुस्तदरक बाब नंबर 75 सिर्फ फसल नंबर 2, बहरीन के आशिकों ने, छोटे छोटे बच्चे थे, जब उन्होंने हाथियों से गुस्ताख पादरी को गेंद बनाया, रब्बे काबा की कसम है, छोड़ो तब जब इश्क का गोल हो चुका था। जान निकल गई पादरी की। ईसाई पहुंचे उमर फारूक के पास, नील के किनारे पर कुत्तों के हुकूक पे भी पहरा देने वाले तुम्हारे दौर में पादरी मारा गया है। हजरत उमर ने पूछा क्यों, क्या हुआ? कहा उसने नबी अलैहिस्सलाम को गाली दी थी, बच्चों ने हाथियों से उसका काम तमाम कर दिया है। खुदा की कसम, तारीख के रोशन सफे पर यह जुमला लिखा हुआ है, मा फरहा उमर बेफतहा वला गनीमा का फरहत ही बेकतल गुलमान उसको। पूरी तारीख में कादसिया की फतह पर भी, कैसर किसरा के खजाने मिल जाने पर भी उमर इतने खुश नहीं हुए थे जितने बच्चों के मावराए अदालत कादरी का भीजा निकालने पर खुश हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अक्का तेरी शान की खातिर, अक्का तेरी शान की खातिर, अक्का तेरी शान की खातिर, अक्का तेरी शान की खातिर। याद रखना, टाइम थोड़ा है, बात खत्म कर रहा हूं। क्या लफ्ज बोले थे हजरत उमर ने?
जेल में नहीं डाला, बच्चों से दियत नहीं ली, बच्चों को गाली नहीं दी, बल्कि बच्चों को इज्जत का ताज पहनाया। इनके किरदार से इस्लाम गालिब आ चुका है। इस वास्ते तारीख के स्टूडेंट हो या दानिशवरी के कमांड में हो, मैं उनको कहता हूं गाजी मुमताज का किरदार नजर उमर फारूक क्या है? अल-आन अज़्ज़ल इस्लाम, अल-आन अज़्ज़ल इस्लाम, अल-आन अज़्ज़ल इस्लाम। और अगर कानून के स्टूडेंट कानून की बात करते हैं, देखो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब गाजी इल्मुद्दीन ने मावराए अदालत राजपाल का भीचा निकाला, अगर ये नाजायज था तो कायदे आज़म वकील क्यों बन गए थे? रोशन दिमागो, बात का जवाब दो। पता चला इसके रिसालत के फैसले अपने हैं। ये मावराए अदालत नहीं, यही तो अदालत है कायनात। कायदे आज़म ने केस लड़ा गाजी इल्मुद्दीन शहीद का, अल्लामा इकबाल ने उनके कसीदे पढ़े। मुबारक हो अहले सुन्नत तुम्हें, तुमने अपनी विरासत गुम नहीं की, आज भी वो विरासत मौजूद है। इस वास्ते अगर कानूनी तौर पर, इल्मी तौर पर किसी ने इस मसले को चैलेंज किया है तो मैं चैलेंज कबूल कर रहा हूं। किस फॉर्म पे चाहोगे, मैं जमीन का जवाब। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। खत्म करता हूं, कहता हूं पार्लियामेंट में बैठे हुए लीडरों से, कहता हूं इक़्तिदार के मजे में मस्त हुक्मरानों से, कहता हूं पंजाब के बादशाहों से, यह मसला दीन का है, ईमान का है। यहां अपनी सियासत को ना देखो, कुर्सी को ना देखो, आयतुल कुर्सी के निजाम को देखो। इस वास्ते कोई भी गाजी के खिलाफ जुबान न खोले, उनके किरदार को खराज तस्लीम पेश किया जाए। अल्लाह के फजल से हमारा परसों का कारवान इस्लामाबाद उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जा रहा है। क्योंकि अभी केस की समाप्त हो रही है, हम उन ईवानों तक, अदालतों तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और अगर किसी ने उनके खिलाफ इकदाम करते हुए कोई ऐसा नाशोबा फैसला किया तो हम ऐलान कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह लाहौर से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद के तख्त शाही तक जाकर साबित करेंगे। पादरी को बरबलाश के चैलेंज को मैं कबूल करता हूं और मैं कहता हूं पोप कोई होप न रखे, पोप होप न रखे। इस मुल्क में, इसके खमीर में, इसके जमीन में इसकी रिसालत है। रब्बे काबा की कसम, हमारी मिट्टी पंजाब की है मगर सीनों में नूर मदीना शरीफ का है। इस वास्ते आज इस पर ही हम इक्तिफा कर रहे हैं। परसों का प्रोग्राम ध्यान में रखें और आगे तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जो भी मजीद कॉल दी जाती है उस पर लब्बैक कहना। आपने, ये आपका दीनी फरीजा है और इस वक्त बेदार करो अपने स्वयं हुए दोस्तों को कि क्या जिम्मेदारी हम पे आयद हो रही है। मैं मशकूर हूँ मीडिया की हजरात का, मशकूर हूँ इंतजामिया का। अब मैं पुलिस को देखता हूँ तो मेरा दिल भाग भाग हो जाता है। इनकी सफों से वो मर्द हक परस्त निकला, मर्द हक परस्त निकला। अब ये भी दावत देते हैं उन लोगों को, कहते थे मदारिस में ये है, मदारिस में ये है। मुमताज कादरी मदरसा पढ़ने नहीं आया, इसके रसालत रब ने सबको अता फरमाया। इस वास्ते हमें इस मौका पर सब्र और इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ना है। कोई भी तोड़ फोड़ न करे।